Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about the multiplication of integers. And students, as you know, we have already done the worksheet in the previous worksheets, addition of integers and the subtraction of integers. Let's see there. Students, today there is a topic here, multiplication of integers. So in the multiplication of integers, it will be given here that the first point, multiplication of two positive integers. Two positive integers. Yes students, there is given here multiplication of two positive integers. First point is multiplication of two positive integers. अगर दोनों इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव हैं और अगर उनका मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो हमारे पास क्या रेस्पॉन्स होगा. नाउ देयर इज अ सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर. एक इंटीजर पॉजिटिव है और एक इंटीजर आपके पास नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई में क्या रेस्पॉन्स देंगे हम. एंड नेक्स्ट इज देयर इज नाउ स्टूडेंट्स देयर इज द थर्ड पार्ट. इन द थर्ड Now students, there is a third part, multiplication of two negative integers. अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रेस्पॉन्स होगा. नाउ और लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोर देन थ्री फैक्टर्स. अगर थ्री से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे. लेट्स सी. देयर इज फर्स्ट पॉइंट हियर. इन द फर्स्ट पॉइंट देयर इज गिवन हियर, रिमेंबर पॉइंट इज multiplication is repeated addition, and this definition we have already done in the previous classes also, कि एडिशन का बार बार रिपीटेशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है. जब हम एडिशन को बार बार रिपीट करते हैं तो उसे ही हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट्स द +3 एंड +4. +3 और +4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, मीन्स +4 इज एडेड 3 टाइम्स. +4 मल्टीप्लाई करना है हमें 3 और 4 को. इसका मीनिंग है कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है कि 3 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाइंग, एंड देन 3 is there is the plus sign, so we will put the plus sign. There is the +12, and same here in the process this 3 is multiplying to the 4. It means 4 is repeated 3 times. 4 units repeated to 3 times. 1, 2, 3, 4. 4 units, this one time, this 2 times, and this 3 times. 4 units are repeated 3 times. 3 will be multiplied to 4. 4 को multiply करना है हमें 3 times. तो हम कैसे करेंगे. 4 is repeated to 3 times. When both the integers are positive, we multiply their absolute values and prefix plus sign to the product. और हम प्रोडक्ट में प्लस साइन प्रीफिक्स करेंगे, इट मीन्स पुट करेंगे. When both the integers are positive, we multiply their absolute values. हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 थी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 थी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रीफिक्स प्लस साइन टू द प्रोडक्ट, बिकॉज बोथ हैव द प्लस साइन, सो वी विल पुट इन द आंसर ऑल्सो देयर इज द प्लस साइन. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर, देयर इज द पार्ट 2. अगर हमारे पास देखो पॉजिटिव साइन होंगे दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है. 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उनके सामने प्लस का साइन पुट कर दिया, इतना ही काफी है. बट अगर साइन हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हमें क्या करना है. लेट्स सी. Multiplication of a positive and a negative integer. There is the positive and there is the negative integer. -4 is repeatedly 2 times. -4 को कितने बार रिपीट करना है हमें. 2 times रिपीट करना है. -4. This is the from 0 there is the -4 and there is the -4. -4 is repeated 2 times here. And on negative we will go to the left side. So -4. This is the repeated here 2 times. बट अगर हमें नंबर लाइन पर नहीं करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. -4 इज रिपीटेड 2 टाइम्स. -4 into -4. It means -4 plus -4. It will be getting here absolute values are product here 4 to the 8, and there will be the sign plus and minus. Minus is there. Is this clear students? There will be the minus negative sign here. Now
there is the next part, that is so it will be getting here when one integer is positive and the other is negative, we will multiply their absolute values and prefix the minus sign to their product. अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमें आंसर में कैसा साइन पुट करना है, माइनस साइन. सो इट विल बी गेटिंग हियर. स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस प्लस साइन है तो आंसर में हमें प्लस पुट करना है. दोनों प्लस साइन थे, प्लस पुट करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद. अगर प्लस और माइनस है तो माइनस पुट करना है, और इसी तरीके से अगर माइनस और प्लस है तो भी माइनस ही पुट करना है. एक माइनस एक प्लस है तो आंसर में हमेशा आपका कैसा साइन पुट होगा, माइनस साइन. प्रीफिक्स माइनस साइन टू देयर प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चंस हियर. अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हों तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस हैं. देखिए व्हेन बोथ आर द नेगेटिव इंटीजर्स -3 इंटू -3, तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए 9 और जो प्रीफिक्स जो भी साइन दिया हुआ है वो प्रीफिक्स में उसके साइन पुट कर दीजिए. दिस इज द साइन प्लस. इज दिस क्लियर? सेम साइन होगा तो प्लस आंसर होगा. सेम साइन था यहाँ भी, दोनों का सेम साइन था, +3 + 4. सो इट विल बी गेटिंग हियर प्लस एंड दिस इज ऑल्सो द प्लस हियर. एंड बट अगर डिफरेंट साइंस हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, सिर्फ मल्टीप्लाई में ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो हमें डिफरेंट साइन में हमें माइनस रखना है. इज दिस क्लियर? देयर आर सम एग्जांपल्स. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, आंसर इज माइनस. 4 3 12. न्यूमेरिकल्स आर मल्टीप्लाइंग as well as we have already done. And 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3. But both are the different signs. One is minus and one is plus. One is minus and one is plus. 0 is multiplying to any number, 0 will get -3 into -1 +3. सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, सेम साइन है पॉजिटिव साइन लगेगा. न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 1 3 and 3 2 6, because numerical values are absolute values of these numbers. Okay students, the multiplier decreases by 1 at each stage. So what will we get? When both the integers are negative, we multiply their absolute value and prefix the plus sign. Is this clear students? This will be the next point. Both 3 points are very very important points. And now this is very simple product of more than 3 points. अगर more than 3 points अगर होते हैं तो सिर्फ माइनस साइन जहां आएगा वहां थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. रिमेंबर में है कि इन द मल्टीप्लीकेशन इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स आपको इसमें काउंट करने हैं कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं. अगर ओड है तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इवन है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा. अगर ओड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, यहाँ चेक करिए 1 2 3, ओड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, इट मीन्स ओड एंड द प्रोडक्ट इज नेगेटिव. आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव ही. बाकी आप मल्टीप्लाई करिए इन नंबर्स को, और आप ऐसे भी कर सकते हैं -2 and 3. 2 नंबर्स को आपने पहले मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एंड 1 प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा आंसर में. -3 2 6. देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम प्रोसेसेज हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की, बट मल्टीप्लीकेशन इज द डिफरेंट वे to multiply the numbers, integers. -6 into -1. Now we will multiply -6 and -1, that is +6. That is +6 here. Now we will again multiplying to the +6 and 5 into -5 is as it is. Now 6 5 30 and 30 is multiplying to the -5. Now this is equal to -150. It will be the one way. ये एक तरीका है जिससे भी आप निकाल सकते हैं, बट कितने स्टेप्स काउंट किए आपने, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है. लेकिन हमें क्या करना है, 1 स्टेप में आंसर फिनिश करना है. देखिए पहले काउंट करिए नेगेटिव साइंस कितने हैं, 1 2 3. ऑड साइंस है, इट मीन्स आंसर में हमें क्या पुट करना है, माइनस साइन पुट करना है. अब सभी की एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 3 1 5 5, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ये होंगी. 2 3 6, 6 1 6, 6 5 30, 35 150. This will be the answer here. Okay students, so let's see, there is the
देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी करवाया है कि प्रॉपर्टीज में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ भी मिलेंगी, आइडेंटिटी, इनवर्स। ओके, लेट्स सी। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी सब जगह सेटिस्फाई हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। बट डिवीजन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां इंटीजर नहीं बनते हैं, वो हम डिवीजन में देखेंगे। नाउ देयर इज द प्रॉपर्टी 2, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है अगर हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं। और हमें याद हो तो हमने एडिशन में भी यही किया था कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो वो हमेशा एडिशन सेम होता है। यहाँ भी अगर प्रोडक्ट में भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ there is the next property 5 3 जा 15 and there is the negative sign because both are the different sign। अगर different sign होंगे तो यहाँ क्या पुट करेंगे, हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। यहाँ भी अगर दोनों डिफरेंट साइन है तो आंसर में भी हम नेगेटिव साइन ही पुट करेंगे और इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी डन। Now there is the property number 3, product remains the same even when change the grouping of the integers। ये associative property है, आपको याद हो तो एडिशन में करवाया था हमने। एंड इन दिस व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स, अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज भी कर देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है इंटीजर्स पर। लेट्स सी, देयर इज द ग्रुपिंग हियर 2 into -10 into 3, दिस विल बी ग्रुपिंग हियर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन जो आंसर आएगा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लास्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है एंड इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने इस इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है। इट विल गेट हियर द प्रोडक्ट इज सेम इन बोथ द केसेस। नाउ देयर इज द प्रॉपर्टी 4, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी इंटीजर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आता है। दिस द प्रॉपर्टी 4। ये हम एडिशन में भी कर चुके हैं। एडिशन में अगर किसी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही बन जाता है। बट प्रोडक्ट में अगर 0 के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं तो 0 खुद आता है। इज दिस क्लियर? दोनों डिफरेंट हैं, याद रखना इसको अच्छे से। देयर इज अ प्रॉपर्टी नंबर 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद बन जाता है। इज दिस क्लियर? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। ये आपको राइट डाउन करनी है फेयर नोटबुक में विद एग्जाम्पल्स। एक एक एग्जाम्पल लिखना है आपको। यहाँ जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप एक एग्जाम्पल करते दोनों करो तो दोनों कर सकते हो आप। आपको ध्यान होनी चाहिए प्रॉपर्टीज कौन सी है मल्टीप्लीकेशन की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ सेटिस्फाइड होती हैं। नाउ देयर इज द लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपका ना ही एडिशन में थी और ना ही मल्टीप्लीकेशन में थी, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में आती है। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के थ्रू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन के अलावा इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों का यूज होता है। देखिए, जब 3 इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 2 into -3 + 5 इज इक्वल्स टू 2 into -3 + 2 into 5। 2 को हम -3 से और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में ऐड का साइन है तो ऐड लगा देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, देयर इज 2 -3 and 5, तो सबसे पहले हमें 2 into -3 + 5 2 इंटीजर्स को हमें ऐड करना है और थर्ड इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी 2 इंटीजर हो सकते हैं, दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, बट डिफरेंट होगा, आंसर डिफरेंट होगा सभी में। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -3 और 5 के एडिशन से। इज दिस क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूट, जैसा हमें नाम से दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना। तो हम इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक बार -3 के साथ और एक बार 5 के साथ। तो ये बन गया 2 into -3 एंड प्लस, बीच में साइन कैसा है, प्लस, फिर हम 2 को 5 के साथ बांटेंगे, 2 into 5। दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और शायद हम पहले भी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, शायद चैप्टर नंबर 2 में। ओके, वी हैव दिस विल बी गिवन एज। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है 2 into -3 + 5,
जब हमने इन दोनों को ऐड किया -3 + 5 दोनों का डिफरेंट साइन है, तो एडिशन में मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस क्या है इन दोनों का 2, और ग्रेटर नंबर का जो साइन होता है वो साइन हमें पुट कर देना है। ये दोनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं एडिशन में। पहले तो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकालिए, फिर बड़े ग्रेटर नंबर के सामने जैसा साइन है वो साइन यहाँ पुट कर दीजिए, और 2 × आंसर इज 2, 2 × 2 = 4 हियर। नाउ राइट साइड को सोल्व करना है, 2 × -3 + 2 × 5। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? -2 - 3। देखिए मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव साइन पुट कर देना है हमें, +2 × 5 = 10। और ये बेटा इंटीजर्स ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। एडिशन अलग सोल्व करिए, मल्टीप्लाई अलग सोल्व करिए, डिवीजन अलग सोल्व करिए, सब्ट्रैक्शन अलग सोल्व करिए, तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इंटीजर्स को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। आपकी प्रैक्टिस ही आपको आसान बना सकती है। अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ईजी बना सकते हैं इन क्वेश्चंस को। लेट्स सी, 2 × -3 दैट इज 2 × 3 = 6। देखिए यहाँ सेम डिफरेंट साइन थे, बट एडिशन में डिफरेंट साइन होते हैं तो ग्रेटर नंबर वाला साइन आंसर में लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन है तो हमें माइनस का साइन रखना होता है। दोनों में डिफरेंट चीज यही है। आप इसको कंफ्यूज करोगे एक दूसरे के साथ, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एडिशन में क्या किया था। एडिशन में हमने बहुत अलग चीज की थी, लेकिन मल्टीप्लाई में हम अलग कर रहे हैं। तो ये आपको रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। एंड देयर इज 2 × -3 दैट इज -6 + 2 × 5 दैट इज 10। एंड डिफरेंट साइन है अगेन, और एडिशन है, डिफरेंट साइन होते हैं तो डिफरेंस निकालते हैं एडिशन में। डिफरेंस 10 और 6 का 4 होता है, और ग्रेटर नंबर 10 है, 10 के सामने प्लस का साइन है तो यहाँ हम प्लस का साइन पुट कर देंगे। दिस विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। इट विल बी डन हियर। All the properties you should know. This is the most important property you should know as well. Write down it 3 times so that you have learnt in the written. Let's see, there is the worksheet 6. In the worksheet 6 there will be given here. पहले हमें सिर्फ प्रोडक्ट साइन पुट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन पुट करने के लिए देखिए, मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या साइन पुट करना है? माइनस। मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन होते हैं तो क्या पुट करना है? प्लस। मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन है तो क्या पुट करना है? माइनस। मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन है तो क्या पुट करना है? माइनस। मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन है तो क्या पुट करना है? माइनस। मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन है तो क्या पुट करना है? माइनस। मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन है तो पुट करना है प्लस। मल्टीप्लाई में अगर डिफरेंट साइन है तो क्या पुट करना है? माइनस। बस यही है क्वेश्चन 1 में, और कुछ नहीं है, तो इसको राइट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ इट विल बी हियर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज -5 × 6। पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 × 5 = 30। अब डिफरेंट साइन है तो हमें क्या पुट कर देना है? माइनस। नाउ देयर इज 19 × 3 = 19 × 3 = 57, and same sign, it means we have to place here plus 15 × 4 = 60, एंड अलग अलग साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आंसर में माइनस पुट करना है। 16 × 2 = 30, माइनस और माइनस को सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ एक बार लिख करके बता देती हूँ फिर से। प्लस × माइनस, ये हमेशा बनता है माइनस, माइनस × प्लस। ये हम ये यहाँ जो कर रहे हैं वही चीज है, बट आपको एक आइडिया दे रही हूँ। दिस इज द माइनस हियर, एंड इफ माइनस × माइनस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस। सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो प्लस को प्लस से करेंगे तो भी प्लस, और माइनस को माइनस से करेंगे तो भी प्लस। बट अगर अलग अलग साइन है तो मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग साइन को तो हमेशा क्या बनता है? माइनस। ये भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है ताकि आपको लर्न रह सके डायरेक्टली। नाउ इट विल बी 5000, 5 × 10 50, 50 × 100 फिर 5000, और साइन कैसा पुट करेंगे? माइनस और माइनस, दैट इज माइनस नेगेटिव साइन कितने हैं? 2, ऑड, इवन साइंस है, 2 इज इवन साइन होते हैं तो हमें कैसा साइन पुट करना है आंसर में? प्लस। नाउ अगेन यहाँ
फिर से 3 टर्म्स हैं, अगर मोर देन 3 टर्म्स होती हैं तो हमें नेगेटिव साइंस को काउंट करना है माइनस एंड माइनस 2, इट मीन्स इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, तो हमें आंसर में प्लस का साइन पुट करना है। प्लस साइन में हमें यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 25 4 जा 100, 4 जा 400 एंड नाउ 7 4 जा 28 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 336. Okay students, there will be 7 4 ja 28, 12 ja 336 and there will be the positive sign. Is this clear? Now there is another question here, -1 into -1 into -1 and so how many negative signs are there? 3 negative sign है, odd number of negative signs, it means आंसर में कैसा आएगा माइनस नेगेटिव साइन, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, देयर इज द वन आंसर। 14 10 अब ये क्वेश्चंस आप दोनों खुद करेंगे। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा क्या बनता है 0। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। It will get this 840 and there are the 3 negative signs, so it will get the negative. Find the value of the following questions. Let's see there students. There is we have to find here the value of these questions. So what will we get here? यहाँ स्टूडेंट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ये सारा क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, distributive property we have. Now students, let's see there is the question number 3. In the question number 3 there is part A. In the part A there is given here 1234 into 567 minus 234 into 567. It will be given here. एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 3 इंटीजर्स हैं, तीनों इंटीजर्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो हमें ऐसे लिखना है और ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तो हमें ऐसे में लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 और 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से। कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर को, कॉमन फैक्टर को हमने बाहर ले लिया, कॉमन फैक्टर को आउटसाइड में निकाल लिया इनटू के साथ, और अंदर क्या बच गया अभी यहाँ पर, दिस इज -3, 2 मल्टीप्लायर्स बाहर ले लिया एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन हियर, दिस इज द क्वेश्चन, नाउ वी विल सोल्व इट। देयर इज द 567, लेट्स सी, देखिए यहाँ 567 दोनों में कॉमन है, तो हम 567 को बाहर निकालेंगे और यहाँ अंदर रख देंगे। 567 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ माइनस साइन। 567 हम कॉमन ले चुके हैं, बाहर आ चुका है, ये यहाँ से भी बाहर आ चुका है, तो जो बच गया वो लिख देंगे हम। दिस इज द 1 2 3 4 माइनस 2 3 4 डन। दिस इज इन द आउटसाइड, कॉमन ले लिया हमने, कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन था उसको हमने बाहर निकाल लिया। दिस विल बी दिस एंड इट विल बिकम्स एज फेयर। नोटबुक में आप बहुत ही सुंदर सुंदर काम करेंगे। ये हो गया आपके पास 1000 और आंसर क्या हो जाएगा 5 6 7 एंड 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट विल बी देयर दैट बी पार्ट। In the B part there is given here 739 into 99 minus 739। देखिए इधर ये एज इट इज क्वेश्चन है, minus 739। So students, there is the, now you are seeing here there is the common here 739 factor. Okay students, and minus multiplying there to become the positive, so 739 into 99, this will becomes the positive sign plus 739। अब हमारे पास 2 ये टर्म्स हो गई, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो यहाँ पक्का क्या होगा 1। सो 739 अभी दोनों में कॉमन आ रहा है 739, इट विल बिकम एज 99। 739 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया यहाँ पर 99 एंड प्लस, और 739 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ 99 बच गया और यहाँ 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया
this is equals to 739 and this is multiplying here 99 plus 1, that is 100 here, and this will become as 73900. It will get the answer. Now there is a part C. In the part C there will be minus 70 into 10 minus 5 minus 22 minus 83. It will be done here. There will be this. So students, पहले हमें इसे सोल्व करना है ब्रैकेट को. So it will be done here 70 into हम दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. That is, let's see, 10 minus 5 is 10 minus 5 5 and minus 22 minus 83. Now it will get there. सेम टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते थे. माइनस 70 कोई नहीं 5 माइनस, ये दोनों सेम साइन है, माइनस एंड माइनस, तो माइनस लग जाएगा. सेम साइन सम होते हैं तो इनको सम करेंगे. 3 2 5 8 2 10 105 and there is a negative sign. So it will be done here that minus 70 into minus, this is minus 100. Both are the different sign. Difference निकालेंगे हम. Sorry, this will be the different sign. So different sign अगर होंगे तो हम difference निकालेंगे. This is minus 100. So students, this is 10 minus 5 5 and minus 22 minus 83. इन दोनों को हम ऐड करेंगे because both are the same sign. सेम साइन होते हैं तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सम होता है. इन दोनों का सम करेंगे 105 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो minus 100. It will get there. इट्स आंसर इज, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस 70 को 100 से 7000. इट विल गेट द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज द पार्ट डी. इन द पार्ट डी व्हाट विल बी गिवन हियर, 861 into minus 3 plus minus 861 into 7. It will get, so D part's answer is it's here. 861 is common there. You are seeing here, everyone. Firstly, we will multiply it. 861 into minus 3, minus sign, and plus and minus, minus 861 into 7. There is common here 861. So what will we get there? 861 is common here. तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 minus 7. So students, this will be 861 and this is minus 3. 861 बाहर लेने के बाद minus 3 बचेगा और यहाँ minus और 7. It will be done there. 861. Now students, you are seeing here minus and minus. Same sign है और एडिशन डिफरेंस में हम क्या निकालते हैं, सेम साइन सम. तो सेम साइन सम 7 plus 3 10 और सेम ही साइन रह जाता है माइनस. देखिए हमारे पास दो रूल मैंने आपको बताए थे, एस 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 और डी डी डी. यहाँ जो एस 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 का मतलब है वो है सेम साइन सम. सेम साइन है तो सम करना है और सेम ही साइन रखना है, सेम साइन आंसर में. इज इट क्लियर? और अगर डी 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 रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट साइन, कैसे साइन होने चाहिए, डिफरेंट साइन. इट मीन्स वी हैव टू टेक द डिफरेंस हियर. डिफरेंस निकालना है और डिफरेंट ही. सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइन डिफरेंस एंड डिफरेंट ही साइन हो जाएगा हमारे पास. दिस विल बी द डिफरेंट साइन. पुट देयर द डिफरेंट साइन. कौन सा डिफरेंट साइन हमें पुट करना होता है, ग्रेटर नंबर वाला, ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर एब्सोल्यूट नंबर. एब्सोल्यूट नंबर का जो साइन होता है उसे हमें ग्रेटर नंबर, जिसकी ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उस नंबर का साइन हमें पुट करना होता है. इज दिस क्लियर? बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. फेयर नोटबुक में आपका लिखा हुआ होना चाहिए. अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा. यहाँ एरो मार्क नहीं है, ये एक है सेम साइन सम और सेम ही साइन रहना है. डिफरेंट साइन डिफरेंस निकालना है और डिफरेंट साइन रहेगा. डिफरेंट साइन जो ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है. एंड दिस विल बी गेटिंग हियर 861 and 10. There will be the minus sign. So students, there will be the part E.
in the part E there is given here 326 into minus 108 and plus 326 into 8. It will be done there. So students, this is given here. 326 is common here. You are seeing everyone? Yes, common. This will be the common here. So what will we get here? The 108 and 8. So there is minus 108 and there is the plus sign. ये रह गया हमारे पास और 8. यहाँ कोई साइन नहीं है. It means हमने माइनस मल्टीप्लाई के साथ में इसको लिया है बाहर. And it will get there 326 into what will we get here? minus 10. Different sign. Again different sign. तो क्या निकालना है? Difference. दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 100. डिफरेंस इज दिस और ग्रेटर नंबर के सामने कैसा साइन है? माइनस. तो हम माइनस साइन पुट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी द 326 माइनस प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाइंग और 0. इट विल गेट देयर ई एफ पार्ट. नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 242 इंटू माइनस 95 and plus 242 into minus 4 and minus 242. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं. वहां हमारे पास 2 टर्म्स होती थी. यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स है. देखिए इन 3 टर्म्स में आपके पास क्या कॉमन है? 242. यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 जरूर होगा. 242 तीनों में कॉमन है तो हम 242 को बाहर निकालेंगे. 242 और अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास 95 बच गया. माइनस 95 फिर प्लस और यहाँ माइनस 4 बच गया. तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस एंड 4. यहाँ माइनस 242 बाहर आ चुका है और यहाँ क्या बच गया? 1. अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इट विल बी द आंसर हियर. दैट इज 242 इंटू माइनस 95 एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे. तीनों ही सेम साइन है तो तीनों को ऐड कर देंगे. 95 प्लस 4 99 प्लस 1 100. 99 प्लस 1 100 और सेम ही साइन रह जाएगा. सेम साइन सम रूल इज दिस. सेम ही साइन है तो सेम सम करेंगे. सम किया हमने 100 और सेम ही साइन लगा देंगे. जो सभी के सामने साइन है वो साइन लग जाएगा. दैट इज द माइनस 100 एंड इट विल गेट हियर द माइनस 100. Now it will be the answer here 24200. This will be the answer here. Okay students, now there is a question number 4. In the question number 4, what will we do here? Write the integer which when multiplied by minus 1. सभी को हमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से. तो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस. दैट इज 3. एंड बी पार्ट इज 19 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिफरेंट साइन है. यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. कोई साइन नहीं होता है तो प्लस साइन होता है. प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई डिफरेंट साइन ही होता है. दैट इज माइनस 19. सी पार्ट इट्स द 0 इंटू माइनस 1. 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 0 होगा. एंड डी पार्ट 74 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिफरेंट साइन तो यहाँ हमें माइनस साइन लगाना है और आंसर में 74. 1 के साथ किसी को भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज नंबर होता है. बट यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई करना है हमें. मेरी ई पार्ट माइनस 69 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ माइनस एंड माइनस से प्लस बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा 69. सेम साइन है तो कम. नाउ स्टूडेंट्स देयर इज द एफ पार्ट. एफ पार्ट में 100 माइनस 100 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा और 100 को 1 से 100. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें कंपेयर करना है. कंपेयर कैसे करना है? ये है क्वेश्चन हमारे पास. 7 प्लस 6 इंटू 10 इज कंपेरिजन टू 7 प्लस 6 इंटू 10. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं. तो 7 प्लस 6 इज 30 इंटू 10 एंड वी हैव टू डू देयर 7. यहाँ मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे पहले क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो मल्टीप्लाई पहले सोल्व होता है एडिशन से. सो 60 इज देयर. दिस इज 130 and this is 7 plus 60 67. Which one is greater? This is the greater number. It will be done here. Now there is a part B. In the part B 11 minus 9 into 8. 11 minus 9 into 8. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे. 11 minus 9 कितना हो जाएगा? 2 into 8 और यहाँ हो जाएगा 11 minus 72. This is 16
एंड दिस इज माइनस. बोथ आर द डिफरेंट साइन होता है तो बोथ आर द डिफरेंट साइन, और डिफरेंट साइन होगा तो डिफरेंस निकालेंगे. 72 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 61, और माइनस साइन बड़े ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन है वो साइन हम यहाँ पुट कर देंगे, एंड दिस विल बी द ग्रेटर. इट विल बी डन हियर. Now students, there is the question number 7. In the question number 7 we have placed here the only sign here. So 7 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव इंटीजर्स हैं 7 नेगेटिव इंटीजर्स और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव ही देंगे, बट नेगेटिव इंटीजर्स 7 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और क्या है ये ऑड है, और ऑड होता है तो साइन आंसर में साइन कैसा लगेगा माइनस, क्योंकि हमें नेगेटिव साइंस को ही चेक करना है. अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो पॉजिटिव, और दिस इज द इवन, इट मीन्स पॉजिटिव होगा, पक्का कंफर्म है वो पॉजिटिव ही होगा. एंड देयर इज द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नेगेटिव, दिस इज द ऑड हियर, ऑड इट मीन्स माइनस साइन पुट देयर, एंड देयर इज हाउ मेनी साइंस 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कितने साइन है यहाँ 9 10 इवन साइंस, इवन नेगेटिव साइंस. इवन नेगेटिव साइन होते हैं तो क्या करते हैं, इवन नेगेटिव साइन होंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे. यहाँ कितने साइन हैं 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं बीच में नंबर नहीं दिए हुए, इट मीन्स ये -12 से 22 तक नंबर्स हैं. तो कितने नंबर्स हो गए 10 11 नंबर्स ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और ऑड नेगेटिव साइन अगर होंगे तो क्या लगेगा साइन माइनस. नाउ देयर इज द ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer. Yes, it's the true product of two integers. We have done already in the property first of multiplication. Product of two integers with opposite sign is positive. Opposite sign, no, opposite sign क्या होता है negative. Since इसको लिख देंगे product of two integers with opposite sign is negative. सिर्फ since में के बाद हम ये लिखेंगे. It will be done. Positive की जगह क्या लगा देंगे negative. The identity element of multiplication is 0. No. आइडेंटिटी मतलब सेम नंबर बना रहना चाहिए.